ऐसा है ना आप लोग का 5 बजे? यस क्यों? सर। हाँ यस सर। ओके। हाँ नेक्स्ट सब टॉपिक इज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट. Self compacting concrete means what? It is no need for the, there is no need for the compaction. Suppose generally what happens, the workability purpose is to place the concrete in the position. That means suppose in the structural member you have to place the concrete in a position. Suppose there for the honeycomb structure generally will form, to avoid that generally some compacting methods we can use, and so that the dense concrete mix will be attained after the hardened concrete. So for that purpose, nowadays the recent years we are generated the self compacting concrete. Here the first of all, a concrete is that able to, that here he has given the definition. That means the concrete is that able to flow and fill every part and every corner of the formwork. That means you are arranging the formwork, whether in case of the beam or in case of column or footing, whatever it may be the structure. Okay, you have arranged the proper formwork. After that you simply pour the water. Just like water, because of the very heavy fluidity, the concrete will flow to the corner and corner, so that there is no gap at all. That means there is no question of the honeycombing, but there is no external effort is required because of its self weight itself. Just like water, just like a honey, it will occupy all the corners very beautifully. Concrete will be that means reach to the position. Next, even in the presence of the dense reinforcement, especially dense reinforcement, where the compaction is not at all possible by means of the external, by external machinery. That means in case of some compaction cases, you are inserting some shutter vibrating or some another vibrators, jolting rods, needle vibrators, etc. You are placing that part, but some particular area you are unable to give the external reinforcement, external vibration due to the congestion. That means congestion of the reinforcement, or because of the non-possibility of the placing the jolting rod, etc. Purely by means of its own weight, self-weight, without the need of any vibration or any type of the other compaction. Just like a liquid, it will flow to the all the compact. This is very beautiful. Next, there should be no segregation during the pouring of the concrete, especially if you are using the more and more water content. What happens? Generally, segregation will take place. Segregation means separation of the individual ingredients. That means coarse aggregate एक side दौड़ती है, fine aggregate एक side है, cement अलग है, पानी एक side है. That means this is called the segregation. But the self compacting concrete जब भी आप बनाओगे, segregation नहीं होना चाहिए. इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना आप जाने, भगवान जाने. बट द segregation should not be permitted in the self compacting concrete. For that purpose you have to do some preliminary precautions. That is the separate thing. Next, where the self compacting concrete is required, where the reinforcement is very very congested. I have seen the Kaiga, the dome of the radioactive element dome. That means the nuclear power station का जो dome है, मैंने previous class I have seen, I have shown to you. Okay, that in that case the reinforcement is very very congested. Next, where the access to allow the vibration is not available, that means you can't give any external force of the vibration. At that case, this SCC is suitable. And the complicated geometry of the formwork. Complicated geometry means suppose the structure ही अजीब से है. That means एक variety structure है, उसमें तो you cannot give any external vibration or external force for the compaction. That means because of the complex geometry of that structure. फार्मवर्क तो मुश्किल से लगा दिया, बट कॉन्क्रीट है, पोर नहीं कर पाओगे. दैट मीन्स आप इधर पोर कर रहे हैं, दैट मीन्स पर्टिकुलर प्लेस में पोर कर रहे हैं. कॉन्क्रीट है ना, धीमे धीमे अंडरग्राउंड में नीचे से, मतलब अंडरग्राउंड से पहुंच जाएगा उधर. दैट मीन्स आपको कैसे पता है, मतलब एक उम्मीद है. दैट मीन्स एक एग्जांपल बताता हूं. इन केस ऑफ द पाइल फाउंडेशंस, पाइल्स मतलब है एक जस्ट लाइक 20 मीटर्स है, मतलब आधा मीटर डायामीटर एंड 20 to 30 मीटर है. एक गड्ढा खोदोगे ना, पहले बोर होल्स ड्रिल करोगे, वो बोर होल में आप ऊपर से कंक्रीट पोर करोगे. एट दैट टाइम व्हाट इज योर एजम्पशन? दैट मीन्स ऊपर तक कंक्रीट आ गया, मतलब क्या है, आगे मतलब दैट मीन्स ये 25 मीटर डेप्थ ऑफ दी पियर, दैट मीन्स ये पाइल है कंप्लीटली फिल हो गया. दैट इज योर एजम्पशन ना. दैट मीन्स आपको क्या पता है, आपने गड्ढा खोद के 30 मीटर खोल के देखिएगा, मतलब मे बी सम एरियाज में कंक्रीट पहुंचा नहीं है, कंक्रीट इज नॉट रीच्ड. दैट मीन्स हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज मे हैपन.
So that means your hypothetical assumption is that you are assume that the concrete is reached to the top surface means the bottom one is already filled, but it is may not be true in all cases. But the complicated geometry of the farm work, especially in case of the boreholes. Suppose आपने घर बना रहा है, पहले तो बोरहोल्स ड्रिल करोगे ना, मतलब सर्कुलर बोरहोल से ड्रिल करोगे 10-12 फीट है, मतलब वो जनरली गड्ढा करोगे, फिर गड्ढा करने के बाद उसमें रेनफोर्समेंट है, मतलब वो बिठाओगे, मतलब वो पहले स्केलेटन बना के रेनफोर्समेंट है, दैट मीन्स 4 रॉड्स, मतलब वो 16 mm डायमीटर रेनफोर्स रॉड्स है, मतलब वो मतलब ये स्टिरप्स वगैरह यूज करके पहले मतलब वो जाली बनाओगे, फिर वो जाली को कंप्लीटली वो डिग कर, दैट मीन्स वो जो भी गड्ढा कर दिया, डिग कर दिया, वो मतलब वो प्लेस में, पर्टिकुलर प्लेस में कर दोगे एंड ऊपर से कंक्रीट पोर कर दोगे. दिस इज नॉर्मली हैपेंड, बट व्हाट हाउ यू कैन श्योर दैट द कंक्रीट इज एग्जैक्टली फिल्ड द एंटायर cavity of the borehole? That means you can't. That means you can't give any assurance. That means you are presuming that concrete पहुंच गया होगा. That means क्योंकि धीमे फिल हो गया, but concrete में थोड़ा honeycomb structure तो formation होगा. But if you are placing the self compacting concrete, there is no question of the honeycombing. नेक्स्ट, वेयर द पोरिंग इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द सिंगल पॉइंट. ये क्या है, मान लीजिए एक जगह ऐसा है, आपने कंक्रीट है, मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह में पोर करना पड़ेगा एंड कंक्रीट है कम से कम 1-2 आधा मीटर दूर में, मतलब वो उधर नीचे से मतलब जस्ट लाइक फ्लूइड जैसा भागना पड़ेगा. दैट मीन्स आप है मतलब देख नहीं पाओगे, फिजिकली देख नहीं पाओगे, लेकिन दूसरा एंड से कंक्रीट है ना नीचे से ऊपर आ जाएगा. हाँ, उसका मतलब क्या है, ऑल द कैविटीज है फील्ड है. दैट मीन्स लाइक दैट यू विल एश्यूम. नेक्स्ट, वेयर द स्पीडी प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड. दैट मीन्स अगर वाइब्रेशन करना ही है, ओनली आई विल इंटरप्ट यू फॉर 5 minutes. वन स्टूडेंट इज केम. ओके, 5 मिनट समय लगेगा. आओ भाई, हाउ आर यू? थोड़ा दे देना, मतलब एक्चुअली मतलब सबको बांट देना प्रसाद. नहीं, आई विल टेक ओनली वन फॉर यू. हाँ, ओके. व्हाई डोंट यू हैव अ सीट फॉर 2 minutes? हाँ, ओके, गुड. मतलब बाकी लोग को बांट देना, क्योंकि प्रसाद है, मतलब जितना लोग को ज्यादा बांटोगे आपको कहाँ कैसे आना पड़ा है. अच्छा, अच्छा. ओके, कैसे आया? कहाँ से, कौन सा? गुड. यू आर डूइंग वेरी नाइस, है ना. आपका प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा लगा था, है ना. बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है यार, मतलब फैकल्टी को अभी सुबह से अभी क्लास है पीएचडी वालों का, अभी तक है. ये आधा घंटा पहले मैं फिर BUS बना रहा हूँ, फटाफट से मतलब क्विज डालना. दैट मीन्स ये 3 सब्जेक्ट्स है, ये हाईवे ट्रैफिक एंड पीएचडी वालों का रिसेंट एडवांसेस इन कंप्यूटर, समझ रहे ना. बिल्कुल हम वी आर जस्ट मैनेजिंग. ये ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, थोड़ा काम ज्यादा बढ़ गया है ना, बिल्कुल हमको समय नहीं मिल रहा. घर में भी बोलता अरे यार 6-7 बजे आ रहा है. ओके, एनीवे गुड, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, है ना. आई पर्सनली लाइक यू वेरी मच. कौन सा भगवान का? सर ये सुंदरकांड. गुड. हो गया, सोना अच्छा लगा यार, है ना. बट थोड़ा हल्का फैट भी हो गया, है ना. टेक केयर देखा. हाँ, ओके. एक्चुअली कभी भी कुछ डाउट आ गया था फोन कर दीजिए, है ना. मतलब आई एम गिविंग यू फ्रीडम फॉर द 3rd year and 4th year. यू कैन एक्सेस मी एट एनी टाइम. इवनिंग अप टू 9:30 तक मोबाइल मेरा हाथ में रहते हैं, एनी टाइम में कॉल कर दीजिए, है ना. ओके, मतलब कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स आल्सो, है ना. बढ़िया करो, अभी सामान ले दो, सेफली पहुंच जाओ. आज ही जाओगे आप? अभी जाओगे? ओके. सारे फैकल्टी से लैब स्टाफ से मिलकर चेहरा दिखा के चले जाओ, है ना. ओके, सो नाइस. ओके, गुड. आई एम वेरी नाइस टू सी यू, है ना. हाँ, सो नाइस बेटा. गुड, है ना. जीते रहो 100 साल. हाँ, ये मतलब सबको बांट देना, है ना. सो नाइस. हाँ, गुड, थैंक यू. Hello, am I audible? Hello? Yes, sir. Okay. Now actually one 3rd year student came, you know. Okay. Now where the SCC is required. Other advantages are noise and no finish is required. That means if the vibration is there, lot of noise and a smooth finish will be
came with you jolting rod or table vibrator or shattering vibrator. And suppose मैं एक चीज बताता हूँ, rigid payments देखा होगा, rigid payments मतलब concrete payment, स्पेशली concrete payments में आपका जो slump कितने यूज करता है पता है? Not more than 25 mm. 25 mm slump मतलब इमेजिन करो, 25 mm slump मतलब है कंक्रीट है ऑलमोस्ट ड्राई कंक्रीट, इट इज ऑलमोस्ट ड्राई कंक्रीट, दैट मींस वाटर है मतलब बहुत कम है, सूखी सूखी कंक्रीट लगता है। इस केस में कॉम्पैक्शन कैसे करता है पता है? फील्ड में रोलर चलाता है 10 to 15 टन्स का जो रोलर है ना, मतलब पहले कंक्रीट है पोर करेगा, दैट मींस दे विल प्लेस दी मतलब दैट ड्राई कंक्रीट इन दी साइट, है ना, जो रिजिड पेमेंट का जो डीएलसी डालोगे, पेमेंट डालोगे, एट दैट के उसको बोलते हैं रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बोलते हैं, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। रोलर मतलब है रोड रोलर, जो रोड रोलर है 10 to 20 टन्स का जो रोड रोलर है ना, वो रोड रोलर चलाता है, समझ में आएगा ना? दैट मीन्स वेरी लो वर्कबल कंक्रीट है, दैट मीन्स दे आर वेरी ड्राई कंक्रीट है, समझ में आएगा ना? सो कॉम्पैक्शन एफर्ट इज नॉट फॉर दिस वाइब्रेटरी एंड मशीनरी और जोल्टिंग रॉड वगैरह इंसर्ट नहीं करना, वो रोड रोलर चलाना है, तभी कॉम्पैक्शन करेगा। So this is not required in case of the SCC, self-compacting concrete. Very beautiful subject, self-compacting concrete. Self-compacting concrete में 1 or 2 PhD is also complete हो गया, मतलब very beautiful. But इसमें SCC achieve करना बहुत मुश्किल काम है। SCC है ना, हर आदमी नहीं बना पाएगा। इवन मैं बता रहा हूँ, इवन मेरा PhD में फर्स्ट 3 to 4 months है नॉर्मल कंक्रीट नहीं बना पाया था, बिकॉज हमें ओनली सब्जेक्ट वाइज है ना, मतलब वी कैन टीच यू दिस दिस, ये मिला दो वो मिला दो, बट वंस यू आर एंटरिंग टू द व्हाइल मेकिंग द कंक्रीट बाय यूजिंग द पैन मिक्सर, बाय यूजिंग द ड्रम मिक्सर, वंस आपने कंक्रीट मतलब घुमाओगे ड्रम में, कभी कभी सूखी निकलता है, कभी कभी ज्यादा पानी हो जाता है, कभी कभी है ना मतलब हनी कोम्ब स्ट्रक्चर हो जाती है, कभी कभी है ना फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाती है ना, मतलब सेग्रीगेशन होते हैं, ब्लीडिंग होती है। सो कंक्रीट बनाना भी उतना इजी नहीं है, दैट इज आल्सो ये आर्ट। That means concrete है मतलब it is a very beautiful, that means making of concrete मतलब you have to thoroughly make the concrete up to 1 or 3 weeks, then only you can get the concrete. देखिए me and Kansanmala madam both were worked around the 1.5 to 2 years continuously on the concrete lab, है ना। हम लोग खुद गम बूट पहनते थे, पुराना कपड़ा पहनते थे, नाइट टाइम आते थे, क्यूरिंग करते थे, है ना, गिट्टी खुद डालते थे, है ना, मतलब बहुत वेरी वेरी ब्यूटीफुली वी आर प्लेस्ड द कंक्रीट एट दैट टाइम। हाँ, उस समय बहुत माहौल ही अलग था। हाँ, ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। असली ये वोकोमेरा है 1986 में जापान। द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द वोकोमेरा। ये वोकोमेरा का नाम से बहुत पेपर्स है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में। He only himself introduced the self-compacting concrete. That means, do you know that? That means Charles Babbage is the father of the computer. He is only first implemented the computer first time. That's why the father of the computer is this, Charles Babbage. Similarly, Wright brothers का एरोप्लेन इन्वेंट किया ना, सिमिलरली, है ना। Similarly, next SCC used in a major project in the Japan in 1988. 1988 में मतलब they are self-compacting concrete. Since the UK, France, Denmark, other countries also in SCC have been recently used in the projects in India also. Recently, SCC arose due to the improved durability of concrete, to reduce the dependence of the availability of the skilled workers for compacting. That means ये vibrating rod चलाने वाला बहुत पैसा लेता है। Recently we have constructed a one house in Vijayawada. There जो jolting rod चलाता है ना, उसका जो दाम है पर डे 2000 रुपीज लेता है। He is a very skilled labor because वो jolting rod है, हर आदमी हैंडल नहीं कर पाएगा, समझ में ना, वो शटरिंग को तोड़ देती है। अगर आपने उल्टा पुल्टा लगा दिया ना, जो भी फार्म वर्क है ना, वो फार्म वर्क को डिसमेंटल कर देता है। सो जोल्टिंग रॉड को इंसर्ट करना एक आर्ट है। सो स्किल्ड लेबर, लॉट ऑफ मनी दे विल गेट। असल बेसिक अप्रोच, दैट मीन्स असल ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाता कैसे है? लिमिट द मैक्सिमम साइज एंड अमाउंट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। क्यों? दैट मीन्स सरिया के बीच में गैप बहुत कम है, इसलिए जनरली सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में स्मॉलर साइज ऑफ द गिट्टी यूज करते हैं, नॉट मोर देन दी मतलब 16 mm, 10 mm साइज एग्रीगेट, 16 साइज mm, बिकॉज जो भी रेनफोर्समेंट के बीच में जो भी गैप है, वो गैप के अकॉर्डिंगली आप कंक्रीट डिजाइन करना पड़ेगा। पहले तो आप रेनफोर्समेंट डिजाइन करोगे, रेनफोर्समेंट का बीच में गैप कितने हैं, वो गैप के अकॉर्डिंगली आप मैक्सिमम साइज ऑफ दी कोर्स एग्रीगेट चुनना पड़ेगा। यू हैव टू सेलेक्ट दी कोर्स एग्रीगेट दैट मच केयरफुल, अदरवाइज आपने मोटा साइज गिट्टी ले लिया तो अंदर, क्योंकि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, मतलब वो फ्लो चलेगा नहीं है, मतलब ये गिट्टी फंस जाएगा, मतलब अंदर कंक्रीट जाएगा नहीं है।
नेक्स्ट हाई पाउडर कंटेंट, हाई पाउडर कंटेंट मतलब सीमेंट हो, सिलिका फ्यूम हो, अदरवाइज फ्लाई ऐश हो, एंड लूब्रिकेंट टू कोर्स एग्रीगेट, दैट मीन्स जस्ट लाइक मतलब ये सिलिका फ्यूम फ्लाई ऐश वगैरह ये है जस्ट लाइक लूब्रिकेंट, दैट मीन्स ऑयल ग्रीस जैसा एक्ट करती है। एडिक्वेट पेस्ट वॉल्यूम टू प्रोवाइड द फ्लूइडिटी मतलब कोहिजन टू द कंक्रीट, एंड वाटर बाइंडर रेशियो एंड द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट के लिए वाटर बाइंडर रेशियो सफिशिएंटली चूज करना। सैंड टू मेक अप द बैलेंस ऑफ द टोटल वॉल्यूम, जनरली सैंड भी मतलब कोर्सर भी नहीं होना चाहिए, फाइनर भी नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स मीडियम साइज। नेक्स्ट स्पेशल एडिटिव्स फॉर द फ्लूवेबिलिटी, दैट मीन्स वीएमएस, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स, दैट मीन्स इस टाइप का जो विस्कोसिटी को मॉडिफाई करने वाली, दैट मीन्स जो मतलब तेजी से मतलब फ्लूइडिटी को बढ़ाने वाले इस टाइप का एडमिक्सचर से यूज कर सकता है कोहेजनलेस। एंड ब्रॉड गाइडलाइंस एफनार्क, दिस यूरोपियन यूनियन है, ये एफनार्क गाइडलाइंस है, मतलब वो सम गाइडलाइंस दे दी, क्योंकि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए देयर इज नो सच कोड इज अवेलेबल टुडे, समझ में, एनी कंट्री डोंट हैव एनी कोड, बिकॉज ये है मतलब दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बट हाउ टू अचीव द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज प्योरली बेस्ड ऑन द इंजीनियर एक्सपर्टाइज इन द फील्ड, है ना। सो आप कहने के लिए वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाओ, बट फील्ड में जाने के बाद कोर्स एग्रीगेटर टाइम टू टाइम बदलेगा, फाइन एग्रीगेट बदलेगा, सीमेंट बदलेगा, एटमॉस्फेयर कंडीशन बदलेगा, फिर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट आप बनाना चाहता है लेकिन बनेगा नहीं है फाइनली, समझेगा ना। सो इसलिए एक गाइडलाइंस दिया है, गाइडलाइंस मतलब रिकमेंडेशन दे दे, कोर्स एग्रीगेट कंटेंट 25 to 35% by the volume of the total mix. कोर्स कंटेंट देखो, कोर्स एग्रीगेट कंटेंट है नॉर्मली जनरली 60 to 70% कोर्स एग्रीगेट रहती है, 5 to 10% है फाइन एग्रीगेट रहती है, एक रिमेनिंग पोर्शन सीमेंट पेस्ट मिनरल एडमिक्सचर रहते हैं। मान लीजिए एक कंक्रीट क्यूब ले लो, मेजॉरिटी पोर्शन है एग्रीगेट्स, मेजॉरिटी पोर्शन, एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट ले लो, उसमें मेजॉरिटी पोर्शन है एग्रीगेट्स रहती है, एग्रीगेट्स मतलब है कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अगर देखा जाए तो 2-3 गुना कोर्स एग्रीगेट रहते हैं, मतलब 1/3 पोर्शन है मतलब फाइन एग्रीगेट रहते हैं नॉर्मली। मान लीजिए एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट में 1200 kg कोर्स एग्रीगेट रहता है, नॉर्मली 500 to 600 to 700 kg सैंड रहते हैं, रिमेनिंग सीमेंट कितने मतलब 5 बैग्स मतलब है 5 or 6 बैग्स, दैट मीन 300 kg आसपास सीमेंट है, समझ में ना। वाटर ऑब्वियसली एवापोरेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट टोटल पाउडर कंटेंट 160 to 240 लीटर्स, दैट मींस 400 to 600 kg पर क्यूबिक मीटर। पाउडर कंटेंट मतलब क्या है, दिस इज आपने फ्लाई ऐश भी यूज कर सकता है, जीजीबीएस यूज कर सकता है, राइसस कैश यूज कर सकता है, दैट मींस पाउडर फॉर्म में जो भी समटाइम्स है लाइम पाउडर भी यूज करोगे, दैट मींस रोड वर्क्स में देखो लाइम पाउडर भी मतलब फिलर मटेरियल जैसा यूज करता है। सो ये कंटेंट है 400 to 600 kg अप्रॉक्सीमेटली क्यूबिक मीटर कंक्रीट ऑफ द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाने के लिए यूज करना। एंड वाटर पाउडर रेशियो, दैट मींस वाटर को पाउडर, जो भी पाउडर फॉर्म में क्या क्या आइटम्स रहती है बताओ, दैट मींस सीमेंट रहती है, फ्लाई ऐश रहती है, सिलिका फ्यूम रहती है, ये वाटर न्यूमरेटर में, एंड जो बाकी सीमेंट प्लस सिलिका फ्यूम प्लस फ्लाई ऐश है डिनोमिनेटर में ले लीजिए, ये दोनों का रेशियो 0.8 से लेके 1.1 का बीच में होना चाहिए, 1.1 का बीच में होना चाहिए। उसका मतलब है 1.1 का बात ये है, दैट मींस न्यूमरेटर ज्यादा आए तो तभी 1.1 आता है ना भाई, क्योंकि ये पाउडर कंटेंट से पानी का कंटेंट ज्यादा रखना ही है, आप ये चीज फॉलो करो। वाटर कंटेंट है नॉर्मली 1.1, दैट मींस 1.1 मतलब क्या है 110%। नॉर्मली वाटर क्या करता है, वाटर कम रखना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा, दैट मींस वाटर डिवाइड बाय ये पाउडर है, दैट मींस 1.1 तक है अलाउड है, दैट मींस वाटर कंटेंट जनरली नॉट लेस देन 200 लीटर्स, हम वेरी हाई। नॉर्मल कंक्रीट में कितने फेंकता है, दैट मींस 165 लीटर्स, 170 लीटर्स, अगर नॉर्मली M20 M25 ग्रेड है तो 186 लीटर्स, 10 to 62 में जो भी दिया है वो 186 है, बट इसमें देखें मतलब 200 लीटर्स पर क्यूबिक मीटर, दैट मींस वेरी हाई वाटर कंटेंट। वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्टेड फॉर द स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सैंड कंटेंट टू बैलेंस द रिमेनिंग वॉल्यूम, सैंड कंटेंट को बैलेंस करके डालना पड़ेगा, दैट मीन्स रेसिपी बनाना ही है, मतलब सब्जी बनाना उतना आसान नहीं है, रेसिपी मैं भी बनाता हूँ, अक्षय भी बनाएगा, सीका भी बनाएगा, एंड मदर भी बनाता है। मदर जो बनाता है ना, शी इज वेरी एक्सपर्ट इन द कुकिंग, सो मतलब उसका जो खाना का जो स्वाद है बहुत ब्यूटीफुल, दैट मीन्स उनको पता है पहले कौन सा गर्म करना, कौन सा तेल ऐड करना, कितने देर मतलब फ्राई करना। सिमिलरली ये
ये एक सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, मतलब उसमें भी मतलब फाइनली बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब है विद द हेल्प ऑफ द सैंड, सैंड को बैलेंस करके डालना पड़ेगा। हाँ, ऊपर नीचे देख के। आखिरी में देखे नमक डालता है सब्जी में, जब भी सब्जी बनाता है नमक डालता है ना, पहले हल्का फुल्का थोड़ा डालता है, आखिर में टेस्ट करने के बाद ऐड कर देता है। आप वो जो अब वो लिस्ट देखो एक बार, उसमें इनका और मेरा नहीं कुछ है। हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट, ये जापानीज अप्रोच, दिस मीन्स ये वोकोमेरा फादर ऑफ द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट फर्स्ट इन्वेंटर है। इन्हीं ने क्या बताया था, ये यूरोपियन यूनियन का रिकमेंडेशन था, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, ये यूरोपियन यूनियन वाले ने ये रिकमेंडेशन दे दी, बट एफनार्क रिकमेंडेशन के अलावा वोकोमेरा ने ये बताया था कोर्स एग्रीगेट कंटेंट है इतना, नेक्स्ट फाइन एग्रीगेट कंटेंट है इतना, दैट मीन्स वाटर पाउडर रेशियो देखे, वाटर बाय पाउडर रेशियो वो लोग कितने बताया, 0.8 to 1.1, इन्हीं ने बताया था 1.1 से लेके 1.4, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स, दैट मीन्स 1.5 टाइम्स पानी ज्यादा करना चाहिए। सुपर प्लास्टाइजर वी फनल टेस्ट ना, ये रिकमेंडेशंस है वो को मेरे, दैट मीन्स आई मे आस्क यू वन क्वेश्चन इन द T3, गिव द रिकमेंडेशंस ऑफ Wocomera for the self compacting concrete making. That means give the recommendations or guidelines for the FNARC recommendations. Then you have to write in these paragraphs. Next, various steps. That means choose the water cement ratio is less than 0.4 for the high durability and mechanical performance. Progressively decrease the water cement ratio if the desired strength is not achieved. That means so much trials करना पड़ेगा. Ensure the compatibility and super plasticizer. Compatibility मतलब दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सपोज सम सुपर प्लास्टाइजर है ना, सम सीमेंट के साथ है कॉम्पैक्ट, दैट मीन्स वो काम ही नहीं करेगा, दैट मीन्स दूसरा सीमेंट के साथ मतलब अच्छा काम करे, दैट मीन्स दीज टू बॉयज आर ओनली गुड फ्रेंड्स, मतलब तीसरा लड़का के साथ है दोस्ती नहीं, क्यों, इनका मानना और उनका मानना जोड़ गया था, दैट मीन्स ये जैसा थिंक करेगा वो लड़का भी ऐसा सेम थिंक करेगा, देन दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, समझ ना, दिस इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट, फ्लाई ऐश optimized with the help of the mini slump test and optimization for the steps 4 and 3 based on the achieving the paste of the high fluidity and good cohesion to avoid the segregation. Segregation भी नहीं होना चाहिए. Next, the proportion of the aggregate skeleton decided for a minimum void content. These are the some guidelines. That means various steps in the mixed design. These are not any standards, only just guidelines है। guidelines मतलब है भैया, मतलब आप ये रास्ता जाओ, मतलब सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनेगा, बट फील्ड में, इन द फील्ड द इंजीनियर एक्सपर्ट विल मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। नाउ यू सी, ये मार्श कोन टेस्ट लेके मतलब सुपर प्लास्टाइजर का कंपैटिबिलिटी वगैरह टेस्ट करना ही है। Next, optimum paste volume decided and cement paste and sand coarse aggregate fixed to mix that exhibit the self compacting concrete. Decide the compressive strength. Compressive strength भी check करना पड़ेगा. Generally aggregates are 10 to 20 mm, 12.5 mm reduces the blockages. Although 20 mm size has been used, that means now ये point में क्या कह रहा है, आपने 20 mm size aggregate use किया, generally aggregate of 10 to 12.5 mm reduces the blockages. दैट मीन्स जो भी ब्लॉक हो जाता है वो ब्लॉकेजेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम रेशियो ऑफ द सैंड टू कोर्स एग्रीगेट इज फिक्स्ड टू गेट ए मिनिमम एग्जिट ऑफ द सेल्फ कंक्रीट। दैट मीन्स सैंड न्यूमरेटर में, कोर्स एग्रीगेट नीचे में, दैट मीन्स ये यूज करके, दैट मीन्स डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आने तक है, मतलब आप ट्रायल्स रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मटेरियल्स क्या क्या यूज करना सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में, फ्लाई ऐश है हाई डोसेजेस, क्यों, इसमें फ्लाई ऐश जब भी है मतलब ये फाइन पाउडर कंटेंट है, ज्यादा रहेगा, फ्लाई ऐश है क्योंकि सुपर प्लास्टाइजर कॉस्टली है, इसलिए सस्ता क्या मिलती है, फ्लाई ऐश। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में विदाउट फ्लाई ऐश है, मतलब सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनेगा नहीं है। अगर इनकेस फ्लाई ऐश नहीं मिलता है, आप लाइम पाउडर यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स इन्हीं पाउडर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए भाई, पाउडर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, सुपर प्लास्टाइजर्स फॉर फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइडिटी के लिए सुपर प्लास्टाइजर्स, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स VMAs, ये विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स है, दैट मींस कोहेसिवनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम द सेग्रीगेशन। ये विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स क्या करेगा, जस्ट लाइक उसका जो विस्कोसिटी को मतलब थोड़ी देर के लिए बढ़ा देती है, दैट मीन्स वो विस्कोसिटी को मतलब मॉडिफाई कर देती है। सो ये विस्कोसिटी VMA नाम से बिकती है, दैट मीन्स वो एजेंट्स है पक्का मिलाना पड़ेगा। वन थिंग इज ट्रू, फ्लाई ऐश एंड VMAs आर मस्ट इन केस ऑफ SCC, ये दोनों के बिना मतलब बनती नहीं है सिलिका फ्यूम, इट इज ए ऑप्शनल।
Silica fume is optional means why hardly early strength and cohesiveness for the high early strength, क्योंकि आपने फ्लाई ऐश है ह्यूज क्वांटिटी में यूज कर रहा है एंड ह्यूज क्वांटिटी वाटर यूज कर रहा है, मतलब इसलिए सिलिका फ्यूम का जरूरत है। मतलब एक चीज है, मैं इधर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जनरली मैंने क्या बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू हाई वाटर कंटेंट, दैट मीन्स वाटर कंटेंट है ऑलमोस्ट 1.1 to 1.4, दैट मीन्स वेरी ह्यूज वाटर कंटेंट यूज कर रहा है। इतना हाई वाटर कंटेंट यूज कर रहा है, देन आपका स्ट्रेंथ बिगड़ेगा, पक्का बिगड़ेगा। टू अवॉइड दैट ये सिलिका फ्यूम कंटेंट भी डालना पड़ेगा। ये सिलिका फ्यूम क्या करेगा, ये माइक्रो सिलिका नॉर्मली रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, इसको तो बहुत प्यास लगता है। सिलिका फ्यूम में जब भी मिलाओगे ना, इसको बहुत प्यास लगता है, दैट मीन्स इट इज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। दैट मीन्स वंस द कंक्रीट में सिलिका फ्यूम मिला दिया है, मतलब है लॉट ऑफ वाटर को ये सक कर लेगी। दैट मीन्स ये सिलिका फ्यूम है ना, अरेस्ट कर देती है। दैट मीन्स जो बूंद है, ड्रॉप ऑफ द वाटर को, टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर्स को ये फ्लॉक में अरेस्ट कर देती है, ये सिलिका फ्यूम। इसलिए मोर एंड मोर सिलिका फ्यूम यूसेज रिक्वायर्स मोर एंड वाटर कंटेंट, बट इन दिस केस पर्टिकुलर केस वाटर कंटेंट मजबूरी में डालना पड़ रहा है, फिर स्ट्रेंथ बिगड़ना नहीं चाहिए। फॉर दैट पर्पज सिलिका फ्यूम ऑप्शनल। Self-compacting concrete is not at all a high strength concrete, but you have to go for the high content of the silica fume because of to control the water. वाटर को कंट्रोल करने के लिए विस्कासिटी मॉडिफाइंग एजेंट, विस्कासिटी को व्हाट इज द विस्कासिटी? विस्कासिटी मतलब इट इज ए फ्लो, दैट मींस इट इज ए प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस द फ्लो, दैट मींस फ्लो को अपोज करती है। दैट मींस हनी एंड वाटर देखो, हनी इज ए वेरी हाई विस्कस मटेरियल, हाई विस्कस मटेरियल। पेट्रोल देखो, इट इज ए वेरी क्विक भागती है, बहुत तेज भागती है, विस्कोसिटी इज वेरी लो है, समझ में आया ना? दैट मींस सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर यूज्ड इन द एससीसी टू प्रोवाइड द फ्लूइडिटी एंड वीएमए इज फॉर द कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस मतलब क्या है? दैट मींस एक मतलब जस्ट लाइक बॉन्डिंग, दैट मींस कोहेसिवनेस मतलब क्या है? दैट मींस अगर सीमेंट में पानी कम कर दिया, सीमेंट में पानी कम दिया, मटेरियल है सूखी सूखी लगता है, डिस्कंफर्ट फील करता है। दैट मीन्स अगर आपने ये विस्कासिटी मिला दिया थोड़ी देर के लिए, अप टू 1 hour and 1.5 hour के लिए, मतलब जस्ट लाइक ए कोहेसिव, दैट मीन्स वेरी स्मूथ पेस्ट जैसा मतलब लुक देती है। विस्कासिटी वीएमएस आर द हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स एंड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स, दीज आर जस्ट लाइक ए पॉलीमर्स। एक टिनी वाटर बबल, दैट मीन्स एयर बबल जैसा फॉर्म होती है, वो क्या करती है जस्ट लाइक है, मतलब कंक्रीट के अंदर चलने के बाद क्या है, जस्ट लाइक बॉल बेरिंग जैसा इफेक्ट आती है। जैसा जैसा कंक्रीट के ऊपर है ना रोलर्स जैसा, स्मॉल स्मॉल टिनी रोलर्स, वेरी फाइन माइन्यूट रोलर्स फॉर्म करती है। बिकॉज ऑफ दैट रोलिंग एक्शन कंक्रीट का जो फ्लूइडिटी है बढ़ जाएगा। हाई मॉलिक्यूलर वेट, such polymers can form the network of large molecules extending throughout the mass. The dimensions of the polymers are plastic are the colloidal range. Colloidal मतलब जानता है, मतलब पानी के अंदर है ना, मतलब मिक्सिंग। कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब क्या है? ओनली मान लीजिए कुछ शुगर डाल दीजिए, एक ग्लास ऑफ दी वाटर में आपने शुगर डाल के मतलब चम्मच से मिला दीजिए, बिल्कुल एक कलर है थोड़ा हल्का से बदलेगा, हल्का से एक व्हाइट कलर है, छोटा 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 ड्रॉप्स है, आई को आंखें को दिखता है, लेकिन आप पकड़ने के लिए कोशिश करो वो मिलेगा नहीं है, वो शुगर बूंद है, नमक का बूंद है ना, मिलेगा नहीं। बट आपको दिखता है वो थोड़ा वाटर है, थोड़ा डट्टी है, समझ में गया ना? बिकॉज दिस इज शुगर मिक्सिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस साल्ट मिक्सिंग। सिमिलर वे ये कोलाइडल स्टेज, मतलब कोलाइडल स्टेज में जो रेंज रहती है पार्टिकल साइज, उतना रेंज में रहती है ये विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट। These also can be used as a anti-washout admixtures for underwater placement. Next, colloidal admixtures. The colloidal main groups are given in this slide. That means I may ask you a question, what are the main groups of the polymers or colloidal admixtures? Because these are the synthetic polymers and semi-synthetic polymers, etc. etc. ये आप self study कर। Next, test for the self-compacting concrete and their limits. Slump 650 to 800 mm रेंज में होना चाहिए। इमेजिन करो 650 mm, दैट मींस ये स्लम्प कोल से टेस्ट नहीं करता है, ये वाइब्रेटिंग टेबल से। दैट मींस जो एक टेबल है, वाइब्रेटरी टेबल रहता है, उसमें एक सर्कुलर गोल रहती है, वो गोल के ऊपर है ना एक छोटा बॉक्स है, मतलब टोपा जैसा लगा देता है, फिर जैसा वाइब्रेटर स्टार्ट कर दिया फिर वो टोपा निकाल देता है, कितने दूर है मतलब स्प्रेड करेगा, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द मतलब स्लम्प, दैट इज द वाइब्रेटरी टेबल। वाइब्रेटरी टेबल से नापता है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है ना, स्लम्प कोन शुड नॉट बी यूज्ड। नेक्स्ट, अगर लोअर वाटर
लोअर का लो वर्कबिलिटी कंक्रीट के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेगा, वी फनल टेस्ट है, T50 टाइम है। ये T50 टाइम मतलब कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये 50 सेंटीमीटर आधा मीटर भागने के लिए कितने सेकंड टाइम लगेगा। मान लीजिए अगर आपका कंक्रीट है मतलब बहुत तेज में भागती है, दैट मीन्स प्योर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, ये T50 सेकेंड्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50 सेंटीमीटर स्प्रेड, मतलब 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर स्प्रेड करने के लिए कितने समय लगेगा, ओनली 2 सेकेंड्स। इमेजिन करो कंक्रीट है 2 सेकेंड्स के अंदर 50 सेंटीमीटर तेजी से कंक्रीट दौड़ती है, दैट मीन्स इट विल फास्टली मतलब स्प्रेड करती है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट वी फनल टेस्ट, दैट मीन्स एम्प्टीइंग मतलब T0 सेकेंड्स, मतलब ये वी फनल में कंक्रीट पोर करोगे, शटर निकाल दोगे, 8 सेकंड के अंदर है कंक्रीट पूरा पूरा बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स T5 सेकेंड्स, दैट मीन्स T0 प्लस 3 सेकेंड, दैट मीन्स जो भी ये T0 में इनिशियल टाइम आ गया इसको मतलब 5 सेकेंड्स ऐड करने में आपको जो भी T0 का जो भी टाइम आया प्लस 3 को लेस ग्रेटर देन होना चाहिए। एल बॉक्स टेस्ट H1 एंड H2, दैट मीन्स जैसा एल बॉक्स एक आती है, एक H1 एंड H2 हाइट नापता है, उसका जो रेंज है H1 बाई H2 का जो रेंज है दोनों का, दैट मीन्स 0.8 to 1 का बीच में। मैं एक फिगर दिखाता हूँ एल बॉक्स का, यू बॉक्स का। H1 माइनस H2 का जो ये है मतलब 30 mm से लेस देन होना चाहिए। नाउ ये फिगर में देखो व्हाट इज H1 एंड H2 एल बॉक्स टेस्ट, दैट मीन्स ये क्या है, ये मोटर funnel test है, this is also self compacting concrete का, this is the standard method of the testing of the self compacting test। नेक्स्ट ये देखो ये क्या है, फ्लो कोन एंड टेबल टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्लम्प फ्लो। एक्चुअली ये क्या है, ये वाइब्रेटरी टेबल, ये वाइब्रेटरी टेबल में क्या है, ये पहले ये जो टोपा जैसा ये इंस्ट्रूमेंट है कंक्रीट है, इसमें फिल कर देता है, फिल करने के बाद जैसा जैसा मोटर ऑन कर दोगे ये रिमूव कर दोगे, जैसा ये रिमूव कर दिया है ये कंक्रीट क्या करेगा, बिकॉज ऑफ नीचे से टेबल के नीचे वाइब्रेटर स्टार्ट हो गया, वो वाइब्रेशन वजह से कंक्रीट है ऐसा राउंड स्प्रेड करेगा। ये दूरी दैट मीन्स ये D1 एंड D2 है, दैट मीन्स ये मेजर करोगे, ये जितना तेजी से जितना दूर ज्यादा भाग गया था उतना बेस्ट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है। ये देखो दिस इज वी फनल का वी टनल कंक्रीट है। इसमें क्या है, टाइम निकालता है, इस साइड से कंक्रीट पोर करोगे ये खाली करने में कितने समय लगेगा। नेक्स्ट ये देखो ये स्लम्प फ्लो टेस्ट, एक्चुअली ये भी सेम है, दैट मीन्स ये जो 30 सेंटीमीटर है ये कंक्रीट का जो स्लम्प कोन है, मतलब इसमें मतलब टेबल वाइब्रेटर के ऊपर रखोगे, इसमें कंक्रीट पोर करोगे, जैसा ये रिमूव कर दोगे, रिमूव करने के बाद वाइब्रेटर स्टार्ट कर दो, ये वाइब्रेटर स्टार्ट करते तो T50 सेंटीमीटर मतलब क्या है, ये आधा मीटर भागने के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ द कंक्रीट टू रीच द 500 mm डायमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर है, मतलब दौड़ने के लिए कितने समय लगेगा। मान लीजिए कंक्रीट इज वेरी फ्लूइड कंक्रीट है ना, फिर इनिशियली क्या है, मतलब ये टेबल वाइब्रेटर के ऊपर है, ये स्लम्प कोन रख दोगे, ये स्लम्प कोन रख के ऊपर से कंक्रीट पोर कर दोगे, पोर करने के बाद जैसा मोटर ऑन कर दोगे तुरंत ये शटर भी उठा दीजिए, that means you will lift the shutter, then because of that external vibrator this concrete will be, क्योंकि ये कवर निकाल दिया, ये स्लम्प कोन है हटा दिया, ये स्लम्प कोन हटाने में ये कंक्रीट है अगल बगल में थ्रू आउट ऑल द डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट कर देगा। ये जो स्प्रेड है मतलब आप मतलब फिजिकल स्केल लेके नाप लीजिए, अगर आपको 50 सेंटीमीटर एक लाइन मार्क किया रहता है, वो 50 सेंटीमीटर लाइन है कितने देर में टच हो गया है वो टाइम नोट कर दीजिए। Now you see this is the H1 and H2, देखो this is the H1 and this is H2, जो ये रेशियो है, क्योंकि अगर मतलब कंक्रीट कैसे होना चाहिए पता है, देखो इधर है एक आयरन रॉड्स रहती है, देखो ऐसा आयरन ऑब्स्टिकल रहते, देखो कंक्रीट है इस साइड से पोर करोगे, देखो दिस इज H1, ये कंक्रीट क्या करेगा, ये जो शटर के बीच में से, बिकॉज देखो दीज टू आर द आयरन रॉड्स, मतलब फील्ड में आपने सरिया डालोगे ना, ये सरिया के बीच में से फ्लो करेगा जस्ट लाइक वाटर, जस्ट लाइक मैनोमीटर देखा होगा ना, पानी एक साइड इस साइड से फेंक दिया तो इस साइड से आके फिर दोनों लेवल है बराबर करेगा, बट एग्जैक्टली ऊपर तक नहीं आएगा, क्योंकि इसका हाइट है मान लीजिए 30 सेंटीमीटर ब्रदर, इस साइड है 29 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, क्यों, एग्जैक्टली दिस इज नॉट ए वाटर है तो क्या है, इस साइड वाटर लेवल इस साइड वाटर बराबर रहते हैं, बट दिस इज कंक्रीट ना, क्योंकि इस साइड है आपने मान लीजिए 40 सेंटीमीटर हाइट का कंक्रीट इनिशियली मेंटेन किया, जैसा ये शटर है रिमूव कर दिया, ये शटर का बीच में से आयरन रॉड्स रहती है जो
अरे फील्ड में जो भी सरिया है दैट मीन्स वो आयरन रॉड्स है, वो आयरन रॉड का बीच में से मतलब ये कंक्रीट है इनको दूसरा डायरेक्शन में आ जाएगा आफ्टर ओपनिंग द सेंटर गेट। दैट मीन्स इसका जो डायमेंशंस है इधर दे दिया है। गैप कितना होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर ऑफ द reinforcement is 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर गैप में से कंक्रीट है मतलब वो कितने दूर आ गया है। दैट मीन्स ये इनिशियल हाइट है h1 एंड द फाइनल हाइट रीच्ड इज h2। ये दोनों का जो रेशियो है इस टेबल में आपको दिया है। दैट मीन्स h1 by h2 है 0.8 से 1 होना चाहिए। 1 बहुत मुश्किल है। 1 आ गया मतलब क्या है, व्हाट इज 1 मीनिंग? 1 मीनिंग क्या है, दैट मीन्स इस साइड जो भी ये हाइट सॉरी जो भी इस साइड हाइट बराबर होना चाहिए। देन दैट इज जस्ट लाइक वाटर का केस में क्या है, बिकॉज आपका ये बीच में कैविटी है, ये कैविटी वजह से इस साइड है मान लीजिए 40 सेंटीमीटर हाइट है, इस साइड भी सेम 40 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। नेक्स्ट एल बॉक्स टेस्ट। एल बॉक्स मतलब है नाउ यू सी ये बॉक्स का जो स्लाइडिंग है, इस साइड कंक्रीट पोर करोगे, फिर इधर शटर ओपन करेगा, इसमें रॉड्स ओपन करेगा, मतलब कंक्रीट क्या करेगा इस साइड से ये आएगा। दैट मींस ये h1 and this is the time required for the 40 सेंटीमीटर्स। दैट मींस कितने दूर है कंक्रीट इस साइड फ्लूइडिटी। कंक्रीट देखो मतलब इस साइड पोर के इस साइड हाइट में आती है कंक्रीट है ये दिस डॉटेड लाइन। सो ये h2 दिस इज द एंड में कितने हाइट पहुंच गया है, ये एंड में ये हाइट है, स्केल से नाप लीजिए। दैट मींस h2 आपको नाप सकता है, h1 मतलब ये इनिशियल हाइट। पहले ये पूरा ये हाइट तक है कंक्रीट भर दोगे भाई, ये शटर है पहले बंद रहती है, जैसा जैसा ये कंक्रीट फिल हो गया हाइट h1 आपको पता है 600 mm 60 सेंटीमीटर। जैसा ये शटर ओपन कर दिया है, ये शटर है ऊपर कर दिया, तब क्या करेगा ये कंक्रीट है इधर का जो कंक्रीट है भागने लगती है, मतलब ये शायद ये ओपनिंग से इस साइड है कंक्रीट है मतलब दौड़ती है, मतलब इट विल रन एंड आखिरी में इधर है जो भी हाइट पहुंच गया है दिस इज कॉल्ड h2। h1 by h2 है, वो जो रेशियो टेबल में दिया है वो होना चाहिए। नाउ यू सी जो भी ये डेंस रेनफोर्समेंट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डोम है, नाउ यू सी बार बेंडिंग देखे मतलब जो ये 20 सेंटीमीटर सॉरी 2 mm 20 mm मतलब है 2 सेंटीमीटर, ये 20 mm का जो रेनफोर्समेंट रॉड्स है कितने थिक भाई, ये है मतलब ये HYSD बार्स है। दैट मीन्स इसका बीच में से कितने मतलब सेल्फ का, इसमें तो जोल्टिंग रॉड कहाँ लगाओगे, दैट मीन्स एक्सटर्नल वाइब्रेटर कर ही नहीं पाओगे, समझ में ना, इसलिए सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट ही डालता है इस केस में, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हाँ नेक्स्ट नाउ यू सी ये जो टनल के लिए भी ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है। पहले तो ये लाइनिंग शटरिंग करेगा, ये शटरिंग करने के बाद जो भी कैविटीज है मतलब आप है मतलब फिल कर दोगे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में। ये टनल है ना, डलहस्ती जो टनल है भूटान में है ना, ये टनल के लिए देखो वो लोग है जो ये हार्श शू टाइप टनल है इसमें से, दैट मीन्स दिस इज रेलवे लाइन के लिए बना रहा है वो लोग, देखो ये मतलब लाइनिंग के लिए तो वो लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज किया है। दैट मीन्स मिक्स प्रोपोर्शन फॉर द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज गिवन, मतलब VMA कितने यूज करना है ना, सैंड कितने यूज करना है ना, कौन सा एग्रीगेट यूज करना। मिक्स डिजाइन फॉर एडाप्टर तारापुर, दैट मीन्स ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में जो भी मिक्स यूज किया है, दैट मीन्स ये मिक्स डिजाइन है टेंटेटिवली आपको जस्ट दिया है। दिस इज आल्सो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। नेक्स्ट 241 स्लाइड, दैट मीन्स सस्टेनेबल कंक्रीट, नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट।